Hello, good morning everyone. Today we will be starting with the new subject that is strength of materials. So basically, yesterday I have discussed the uh, code of the subject that was TCE 402, and we have discussed the syllabus of the subject and learning outcome of the subject. So first of all, we will discuss what is this strength of material. So it is that branch of science which deals with the influence of loading on the deformable bodies. It is the branch of science which deals with the influence of loading on the deformable elastic bodies based on the Hooke's law, principle of strength of material and principle of superposition. So basically ये है क्या डिफॉर्मेबल बॉडीज है क्या डिफॉर्मेबल बॉडी जैसे हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया था रिजिड बॉडी and we have discussed that in case of strength of material we deal with the deformable body. So first of all, the two types of body that we have discussed, one is rigid body and one is deformable. So what is rigid body? Rigid body, we have discussed that it is a combination of large number of particles. These are the large number of particles in which distance between the two particles, let it be d, does not changes after applying the load. So this type of body is known as rigid body. And when we are talking about deformable body, the distance between the two particles changes. This d changes after applying the load. Okay. So this is the difference between rigid body and deformable bodies. And when we are saying that this is the branch of science which deals with the influence of loading. So when the load is applied on these type of bodies, what is the behavior of that material? How it behaves? And these studies only based on the Hooke's law, where we are studying according to the Hooke's law. And what is Hooke's law? Hooke's law says that stress is directly proportional to strain. Okay. Hooke's law क्या कहता है? Stress जो है वो हमारा directly proportional to strain. And principle of strength of material, principle of superposition is valid. ये सब हम बातें डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ता जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए कि आप डिजाइन इंजीनियर हैं, आपको कोई भी मटेरियल कोई भी स्ट्रक्चर बोला गया है बनाने के लिए. सबसे पहले आप उसमें कैसा मटेरियल यूज करना चाहिए? मटेरियल ऐसा यूज करोगे जो एकदम से टूट ना जाए. जो अगर एकदम से कोलैप्स हो गया तो वो मटेरियल भी किसी काम का नहीं होगा. बिकॉज क्या उससे एज यू आर मेकिंग एनी बिल्डिंग, उसमें क्या है लोग रहेंगे अगर कोई वो बिल्डिंग एकदम से कोलैप्स हो गई तो क्या होगा? कैजुअलिटीज हो जाएंगी. ये आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो. ओके. सो आप ऐसा मटेरियल चूज करते हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए दैट विल नॉट फेल डायरेक्टली. वो पहले इंडिकेशन दे कि ये फेल हो रहा है. So that type of material is known as ductile material. So here you can see that the design engineer always prefers the ductile material. Ductile material ऐसा material होता है that shows indication before failure as compared to the brittle material. Brittle material कौन सा material हो जो without indication क्या होता है? collapse हो जाता है. अब आप बताइए, आप इसमें से डिफर कर सकते हैं. अब आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या चाहेंगे कि मटेरियल कैसा हो? डक्टाइल हो या ब्रिटल हो? खुद सोचिए. ऑब्वियस है कि आप चाहेंगे कि हमारा मटेरियल डक्टाइल हो क्योंकि वो हमको इंडिकेशन देगा बिफोर फेलियर. ओके. Because ductile material gives indication in the form of yielding before fracture in the form of plastic deformation. First of all क्या होगा? मटेरियल क्या है वो हल्का सा क्रैक दिखाएगा कि मैं यहाँ पे से टूटने वाला हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से क्रैक होने वाला है तो आप क्या करेंगे? प्रिकॉशंस ले सकते हैं और या तो वो बिल्डिंग क्या छोड़ देंगे आप अगर ज्यादा क्रैक्स आ गए. तो ये इंडिकेशन उसने पहले ही दे दिया कि ये कोलैप्स होने वाला है तो आप क्या करेंगे? वो बिल्डिंग छोड़ देंगे. तो इससे क्या होगी? कैजुअलिटीज नहीं होगी. तो आप हमेशा कौन सा मटेरियल प्रेफर करोगे? टेक्टाइल मटेरियल. बट ब्रिटल मटेरियल डज नॉट गिव एनी इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ यील्डिंग एंड सडन फ्रैक्चर विल अकर. तो एकदम से क्या होता है ब्रिटल मटेरियल? फ्रैक्चर. Material which fails by plastic deformation is called ductile material and material which fails by fracture is called brittle material. So जब ductile material fail होता है उस टाइप के
फेलियर को बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और जब फ्रैक्चर होता है दैट इज ब्रिटल मटेरियल। ये हम डिस्कस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जब हम पूरा बनाएंगे तो उसमें क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, कहाँ पे फ्रैक्चर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सब्जेक्ट में आपने देखा दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाम ही में क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ होती क्या है, यू कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू, उसको ऐसी मैक्सिमम वैल्यू बोली गई है ऑफ स्ट्रेस दैट मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट एनी फेलियर। वो बॉडी कितना मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकती है विदाउट फेलियर, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। अगर वो फेलियर होना स्टार्ट होगी दैट इज नॉट, वी आर काउंटिंग दैट इज नॉट द स्ट्रेंथ, वी आर सेइंग द मैक्सिमम कितना वो स्ट्रेंथ ले सकती है विदाउट फेलियर इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ दैट। So strength is a property of material which does not depends upon shape and size of the material. It is a constant value. So जो strength है वो property है material की, that does not depend upon the shape of that material और size of the material. So ये I hope ये point clear हो कि वो shape पे और size पे depend नहीं करेगी, that is constant. Now we comes to stress can be varied in material which depends upon load applied and cross sectional area. अब देखिए स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस होता क्या, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए कि ये एक वॉल है। अब इस वॉल पे मैंने क्या किया है, ये हाथ लगाया अपना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। सो मेरा ये जो हाथ का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये कौन विदस्टैंड कर रहा है, ये वॉल, ये रेजिस्ट कर रही है मेरे को। सो first of all the thing is what is the pressure I have applied. Pressure is the force applied by me per unit cross sectional area. अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, जितना एरिया मेरा मटेरियल के साथ कांटेक्ट में है। अगर मेरा ये हाथ कांटेक्ट में तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जितना मेरा हाथ उस वॉल के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया डिवाइडेड बाय दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज प्रेशर। स्ट्रेस क्या होगा, जितना ये वॉल रेजिस्ट कर रही है मेरे को, बिकॉज न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जो रिएक्टिव फोर्स ये मेरे पे लगाएगा डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। तो इसलिए हम स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं दैट स्ट्रेस इज resisting force, stress is resisting force per unit cross sectional area. So I hope ये point clear है, ये कौन सी force है, that is resisting force। ठीक है, internal force भी कह सकते हो उसे। this is cross sectional area। अब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझ में जितना एरिया कांटेक्ट में है, ओके, दैट इज नोन एज। सो स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे माइल्ड स्टील की, so mild steel ऐसा material, that is mild steel is frequently used for designing purpose। क्यों, because that is ductile material due to its high ductility, very ductile material, you can say it is highly ductile। formability, it what is formability, it is formable than aluminum। हम इसको किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं। फॉर्मेबल कैसे है ये, देखिए अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर वी कैन मोल्ड इट इनटू एनी शेप, तो दैट इज फॉर्मेबल। वो किसी भी शेप में हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। सो इसलिए हम माइल्ड स्टील को प्रेफर करते हैं। एंड दिस माइल्ड स्टील इज मोर फॉर्मेबल देन एल्यूमिनियम सिंस इट इज अ डक्टाइल मटेरियल, इट गिव्स क्लियर इंडिकेशन बिफोर फेलियर बाय। अगर आपको कोई पूछेगा कि माइल्ड स्टील क्यों प्रेफर करते हैं तो आपके पास आंसर अब आई होप होगा कि माइल्ड स्टील इज मोर डक्टाइल, it is highly formable। And other point is that coefficient of thermal expansion of concrete is just similar to mild steel। जो coefficient of thermal expansion है that is
कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट और स्टील का सेम है, दैट इज अल्फा इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम है, so we use mild steel with concrete. Therefore, used in RCC because due to temperature variation, bond between the concrete and steel will not break, so thermal stresses will not develop. तो उनका क्या होगा, जब थर्मल एक्सपेंशन अगर टेम्परेचर राइज होता है तो कंक्रीट और माइल्ड स्टील का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो भी क्या होगा, उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज सेम। तो जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे दैट विल नॉट जनरेट बिकॉज बॉन्ड बिटवीन द माइल्ड स्टील एंड कंक्रीट इज देयर मेंटेन। अब आपको कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, देखिए ये हम डिस्कस करेंगे फुली, सभी डेफिनेशनों पे काम करेंगे। दैट इज यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, शेयर मॉडुलस क्या होता है, ये हमारा थोड़ा आगे टॉपिक में हम चाहेंगे। अभी हमें ये डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा हम आते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी यू कैन से इट इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच द मटेरियल विल डिफॉर्म। कहाँ तक हमारा मटेरियल डिफॉर्म हो सकता है, अगर हम उसको मेजर करें दैट इज द डक्टिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। कहाँ तक हमारा मटेरियल डिफॉर्म हुआ बिफोर फ्रैक्चर, यहाँ पे अगर फ्रैक्चर है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मटेरियल डिफॉर्म हुआ है। ठीक है, अभी क्या होगा, कुछ मटेरियल क्या होगा, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इलास्टिक रॉड देखेंगे या मटेरियल देखेंगे, अगर मैं इसको बैंड करूंगा तो क्या होगा, ये वापस क्या आ जाएगी अपनी ओरिजिनल शेप में, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। क्या हो गया, मैंने फोर्स लगा के बेंड किया, वो वापस अपनी शेप में आ गया, दैट इज नोन एज द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। जिस पॉइंट के बाद वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं जाता, उस पॉइंट से और जहां तक वो फ्रैक्चर नहीं होता उस पॉइंट तक, दैट इज द मेजर ऑफ द डक्टिलिटी। आप मेजर कर सकते हैं फ्रैक्चर से, और डिफॉर्मेशन जहां से स्टार्ट हुआ है that is known as the ductility of the material. So it is the measure of extent to which the material will deform before fracture. Ductility means that it can be easily drawn into thin wires. एक और definition कह सकते हो, that it can be drawn into thin wires. So it is the ability to deform under tensile load. अब जब ये डिफॉर्म कब होगा, जब उसमें क्या होगा, टेंसाइल। सपोज ये बाहर है, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, टेंसाइल लोड, एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, अगर ये एक एल बाहर है एल लेंथ का, इधर मैंने टेंसाइल लोडिंग लगाई है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, डिफॉर्म अंडर टेंसाइल लोड। तो ये क्या होगा, डक्टिलिटी तभी तो चेक होगी, दैट हाउ कैन इट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, दिस इज नोन एज द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। अब डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, दैट इज yield stress in compression. Ductile material is stronger in compression than in tension than in shear. So जब डक्टाइल मटेरियल से हम किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, सो वी लुक फॉर द फेलियर इन शेयर। शेयर से फेलियर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज वीकेस्ट इन शेयर। यहाँ पे देखिए, डक्टाइल मटेरियल आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंप्रेशन देन इन टेंशन देन इन शेयर। सो सबसे वीक किसमें है, शेयर में। सो इसके लिए हम सोचते हैं, जब डक्टाइल मटेरियल से डिजाइन करते हैं तो हमको ध्यान रखना है दैट शेयर से फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज कम अगर शेयर से फेल नहीं होगा तो बाकी दोनों में तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। That is sigma yc is equal to yield stress in compression, sigma yt is yield stress in tension, and tau is shear stress. ठीक है, सो ये हो गया हमारा डक्टिलिटी। नाउ कम्स द मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी क्या होती है, मैलिएबिलिटी यू कैन से इट इज सिमिलर प्रॉपर्टी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव लोड। पहले तो हमने क्या किया, उस बार को टेंसाइल लोड लगाया,
अगर वही सिमिलर बार को हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, दैट इज P, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, दिस बार लेंथ इज L, कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ये डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा। अब जब कंप्रेसिव लोड, जैसे ये जितना डिफॉर्म स्टार्ट होगा अंटिल द ये शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको कंप्रेसिव लोड देता जाऊंगा तो ये क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी के अकॉर्डिंग, बट द लोडिंग इज कंप्रेशन। डक्टिलिटी में क्या था, हम उसको टेंसाइल लोड देते हैं, मैलिबिलिटी में क्या होगा, हम उसको कंप्रेसिव लोड। इट इज सिमिलर प्रॉपर्टी टू डिफॉर्म अंडर कंप्रेसिव लोड इनटू थिन शीट्स। So ductility, ductile materials are weakest in shear, ये तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। Thus design engineer is concerned with the shear failure। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए shear failure नहीं होना चाहिए। एग्जांपल्स क्या है इसके, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, दैट इज, एंड यू कैन see that lead is highly malleable but low ductile। लेड इज हाईली मेलेबल, मतलब कंप्रेसिव लोड जब उस पर लगेगा तो ये क्या होगा, हाईली मेलेबल है बट लो इंडक्टिव। अगर लेड को हम स्ट्रेच करेंगे, टेंसाइल लोड देंगे तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, लो डक्टाइल। मोस्ट डक्टाइल मटेरियल इज प्लेटिनम, इट इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। मोस्ट मेलेबल इज गोल्ड। लेड क्या है, हाईली मेलेबल है बट लो डक्टाइल है। और जब हम गोल्ड की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल है, मेलेबल है, और मोस्ट डक्टाइल मटेरियल कौन सा, प्लैटिनम। तो ये आपको याद रखना। So that is it for today, and we will discuss further more regarding this course, that is strength of material. We will discuss more definitions and what are the constant we will use, and then we will start with the other units also. So thank you very much for today.